vectors. So so today we will do vector multiplication. So vector multiplication is a little bit different from vector addition and subtraction. So see, when I add or subtract, suppose we'll go into past again. So whenever I add, I say 3 kg plus 2 kg, so it comes out to be 5 kg, right? So in the addition, I say that all physical quantities has to be same, right? मास के अंदर मास ही ऐड होता है and the output is also mass. But when I do a multiplication, suppose I take simple example. Suppose I say S equal to V into T. Okay, this is suppose speed. This is time. If I multiply speed into time, so what will I get? Distance. So all three quantities are different. So that is why जो multiplication है उसके अंदर थोड़े से changes आ सकते हैं. This is not like our addition or subtraction. So first let's start with how many permutation combination are possible for the vectors. Okay, who will tell me? Hello. मतलब Permutation मतलब see there are two things. One is scalar, one is vector. Okay. So what are the possibilities of multiplication? Either I can case one. Case one is scalar and scalar. बताओ स्केलर एंड स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है? इट्स लाइक स्केलर्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स. स्केलर्स आर नंबर्स, राइट? सो आई विल से 3 into 3 क्या होता है? 9. ठीक है. दिस वी हैव डन क्योंकि हम लोग कि क्लास फर्स्ट से लेकर अब तक और ये वाला ही करते आए हैं. इसके बाद क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी? स्केलर इनटू वेक्टर एंड वेक्टर इनटू वेक्टर. यस. सो ये हमारे पास में क्या आएगा? स्केलर ही आएगा आउटपुट भी. एंड नाउ इज स्केलर इनटू वेक्टर. Scalar into vector. So what happens in that? So you have already seen this thing, but you have not realized that you are multiplying your vector to some scalar. Like suppose if I say 5a. So what does that mean? 5 is number, a is vector. So I am multiplying a scalar to a vector. So what happens? Suppose this is my vector a. And suppose if I multiply by a positive number, so what will happen? Okay, now tell me what is the magnitude of vector 5a? 5 times of vector a. So what will happen like this? So this vector is 5a. Okay, so I will say magnitude will change and डायरेक्शन इज सेम. जैसे कि आई कैप एंड 4 आई कैप, बताओ इनके बीच में रिलेशन क्या है? आई कैप एंड 4 आई कैप्स क्या होता है भाई? अगर मैं एक्सिस बनाऊं, ये हमारे पास में
ये बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। तो ये वेक्टर हमारे पास में आई कैप, ये मैंने एक और वेक्टर बना दिया, ये क्या हो गया 4i कैप। So if I multiply a vector by a positive number, then magnitude gets increased by that number and direction is same. Okay. If I multiply by negative number, then The direction opposite हो जाएगा. yes. जैसे कि suppose I have vector A and I multiplied it by 5. So see, the magnitude will become 5. But if I put minus sign, so what will happen? Arrow will change, ना? So हम क्या लिखेंगे? Magnitude will be जो भी तुम्हारा नंबर है, नंबर टाइम्स, जैसे कि यहाँ पे नंबर 5 था ना, 5 टाइम्स एंड डायरेक्शन रिवर्स। जैसे सपोज तुमको एक एग्जांपल दे दूं सिंपल सा, ये हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस। सपोज दिस वेक्टर इज आई कैप, सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट -4i कैप, तो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया, ये मैंने लिखा 4 टाइम्स, लेकिन इसका एरो कहाँ की तरफ है, ऑपोजिट, राइट। और जो आउटपुट कैसा आएगा बताओ इसके अंदर, इफ आई स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, वेक्टर। देखो ना, 5i कैप भी मेरे पास में एक वेक्टर है, 4i कैप भी वेक्टर है, -4i कैप भी वेक्टर है। गॉट इट? एनीवन, एनी डाउट? अरे बोलो भाई। नो सर। हाँ तो सिंपल, हाँ so what we have done, whenever I multiply a vector by a number and that number is positive, so magnitude of the vector will become utne hi times and then direction is same. If I multiply a vector by negative number, then what will happen, magnitude will become that number times and direction will be reversed, because whenever I see a minus sign in front of a vector, that means the vector is reverse, जो उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा रिवर्स हो चुका है। सो दीज आर कॉमन थिंग, ये तो हर किसी को पता होती है, तुमको ही पता है, तुमने रियलाइज नहीं किया लेकिन तुमने इस चीज को फील किया हुआ है, ठीक है। नाउ सी, इंपॉर्टेंट चीज कम्स हियर, वेक्टर एंड वेक्टर। When you multiply two vectors, okay, suppose you are having vector A and vector B, you have to multiply, and जब तुम multiply करते हो, so based on the output of the vector, we have segregated, or you can say divided these things into two parts. One is scalar product, ठीक है, स्केलर जो है प्रोडक्ट उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ओके। इसका मतलब होता है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से इन सिंपल वर्ड, द आउटपुट इज स्केलर। जैसे एग्जांपल दो, वर्क, क्या होता है वर्क, स्केलर होता है वेक्टर होता है, Scalar. Vector is just work is a scalar quantity because work is energy, okay, energy is a scalar quantity,
और हमारा जो है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सर एफएस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। फोर्स भी कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर भी अपना डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आई एम गेटिंग ए स्केलर क्वांटिटी आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर। सर हम वो इसको ऐसे, एफएस कॉस थीटा किसका होता है फिर? हाँ हाँ वो यही होता है। ठीक है, तो जैसे कि इफ यू सी, आई गिव यू एग्जांपल, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए, ये हमारे पास है वेक्टर बी, और इसके ये बीच में सिंबल लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में कौन सा सिंबल लगाया हमने? डॉट। देखो यहाँ पे हमने बीच में कोई भी सिंबल नहीं लगाया है, ये लिखा हुआ है ना 5a 4 i कैप 5a। यहाँ पे जब मैं इफ आई मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय ए स्केलर देन देयर इज नो साइन बिटवीन देम। ओके, ये सिंबॉलिक चीजें हैं। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स and their output is scalar, so this is how I represent them, a vector dot b vector। और इसका जो मीनिंग होता है, मतलब इसका जो आउटपुट आता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और इनके बीच के एंगल का cos। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूँ a b cos थीटा। अब देखो ये क्या है? a है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ये क्या है? b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, और ये थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? देखो cos थीटा का मतलब क्या होता है? जैसे कि इफ आई गिव यू वन एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास में एक वेक्टर है a, इसका मैग्नीट्यूड a, ये हमारे पास में एक वेक्टर है b, इसका मैग्नीट्यूड b, और ये एंगल हमारे पास में थीटा है। तो सपोज एक काम करो, कंपोनेंट करो b के। हाँ, कैसे करोगे कंपोनेंट b के? बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। हाँ हेलो हाँ सर, ये सेम तो उसमें होता था ना, वर्क डन अल्लाह तो ही चाहिए छोड़ी यार। ए बी कॉस थीटा। ओके, ये जो है b, इसका इधर कंपोनेंट क्या आता है? b cos थीटा। और ये जो लाइन होती है यहाँ पे कंपोनेंट क्या काम में आता है? b साइन थीटा। sin थीटा। तो देखो हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a डॉट b का मीनिंग क्या आ रहा है? ठीक है, A square। तो I कैन राइट लाइक दिस, a डॉट b वेक्टर इक्वल टू, हमारे पास क्या आया? ये आया ना, a b cos थीटा आया, तो मैं लिख सकता हूँ ना a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, एंड ये क्या है? b cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, राइट भाई? उसके ऊपर कंपोनेंट आ गया ना। हाँ राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इन डॉट प्रोडक्ट द कंपोनेंट which is along second vector is useful। मतलब मेरे काम की चीज कौन सी है? वो वाला कंपोनेंट मेरे काम का है जो कि उसके अलोंग है। ठीक है ना? अब देखो, अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जैसे पहले एक अपना एग्जांपल करते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक ये रखा हुआ है बॉक्स, ठीक है? इसके ऊपर मैंने यहाँ फोर्स लगाया, फोर्स मैंने लगाया 20 न्यूटन, और ये जो बॉक्स है ये हिलता 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 यहाँ तक आ गया। ये सपोज तुम्हारे पास है 5 मीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री।
तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन, बताओ क्या आएगा? हम 20 तो into 5 into 60 cos तो 60. पहले हमको पता होना चाहिए, हम लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स वेक्टर डॉट अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या बन जाएगा? फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 इनटू अपना डिस्प्लेसमेंट 5 एंड कॉस 60, तो क्या बन जाएगा ये? 50 जूल। joules. अब देखो ये जो चीज आया ये कैसा आया? पॉजिटिव आया ना। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। देखो ना पार्टिकल यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना कि वो उसको स्पीड अप कर रहा है, जहां पे तुम जा रहे हो उधर ही लेके जा रहा है। अगर मैं इसी का एक और एग्जांपल लूं, यहाँ का एंगल तुमको दिया हुआ है 60, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और पार्टिकल यहाँ चला गया, पार्टिकल यहाँ पे और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अब बताओ अब जो हमारा आएगा वर्क डन वो क्या होगा? माइनस तो पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला एफ डॉट डी। फोर्स कितना है? 20, डिस्प्लेसमेंट 10। अब इनके बीच में एंगल, ये वाला एंगल है ना, यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एंगल कितना हुआ? कॉस 120। कॉस 120 इज माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा? माइनस 100 जूल। हमको पता है स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैन बी नेगेटिव, जैसे हमारा टेम्परेचर होता है ना, तो हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो कब होगा? विल राइट। सो आई नो दैट ए डॉट बी जो है दैट इज ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो इट कैन बी सर एक मिनट ऊपर पॉजिटिव, छोड़ कर हाँ हाँ करता हूँ, इट कैन बी नेगेटिव, हाँ। हाँ सर लिख दिया। तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो तो हमेशा कैसे होते थे? पॉजिटिव होते हैं। सो आई नो दैट ए इज ऑलवेज अपना ग्रेटर देन 0, बी इज ऑलवेज अपना ग्रेटर देन 0। तो इफ दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव दैट मींस cos थीटा हैज टू बी पॉजिटिव। तो मतलब क्या बात हो, तुम्हारा एंगल कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए ना। एक्यूट एंगल के लिए cos की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। अब देखो 0, ए डॉट बी 0 कब होगा? when Cos is equal to theta is equal theta to is 90 degree, that means a vector is perpendicular to b vector, that means angle between both the vectors is 90 degree। नेगेटिव तब होगा when थीटा की जो वैल्यू है that is greater than 90। so वेक्टर्स हमारे कुछ इस टाइप के होने चाहिए, एक वेक्टर यहाँ पे है, एक वेक्टर यहाँ पे। इसके अंदर देखो ना ये चीजें कैसी होंगी? स्लो डाउन होंगी ना, फाइन। तो ये हम देख सकते हैं कि स्केलर जब होता है प्रोडक्ट हमारे पास में, तो क्वांटिटीज जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। फाइन, यस आगे बढ़े। चलो कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसके रूल्स। जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है a डॉट बी, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस। और अगर कहीं पे मैं लिखूं b डॉट a, तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू इनके बीच के एंगल का कॉस। एंगल बिटवीन a एंड b इज सेम एज एंगल बिटवीन b एंड a, तो एक ही बात होता है ना। तो देखो यहां से क्या लिख सकते हो, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a। सही है? क्या बोलते हैं इस रूल को? अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है a डॉट b प्लस c, so I can write a dot b plus a dot c। सर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ना? हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। हाँ, तो अगर हमारे पास में कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो वी कैन मल्टीप्लाई, बट यू आर ऑलवेज हैव टू चेक, ये जो साइन है ना बीच वाला डॉट, ये तुमको देखना पड़ेगा। देखो अगर यहाँ पे है डॉट, तो यहाँ भी क्या आएगा, डॉट ही आएगा। ठीक है? कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो तो तुम क्या लिखोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c, बताओ क्या बन जाएगा ये? a vector dot b vector plus नो ac। नो 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 बेटा, दिस इज रॉन्ग, स्टेटमेंट ही गलत है ये, बिकॉज यू कैन नॉट एड ए स्केलर टू वेक्टर ना। स्केलर और वेक्टर का एडिशन थोड़ी ना हो सकता है। तो अगर मैं सी के ऊपर एरो नहीं लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, सी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर और वेक्टर का एडिशन कैसे करोगे? तो दिस इज कैसे सेंसलेस चीज। तो हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो, इज दैट मेकिंग एनी सेंस और नॉट। ओके, सपोज आई राइट समवेयर ऐसे 5 डॉट a कैप, तो क्या आएगा, ये 5 तो स्केलर है, a इज अ वेक्टर, इनके बीच में ये नहीं हो सकता डॉट, तो क्या बोलेंगे, सेंसलेस। देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। हमको डॉट के दोनों तरफ जो है वो वेक्टर ही चाहिए। ओके, ठीक है? यस सर। ओके, आगे आते हैं। अब जो हमारे स्टैंडर्ड एक्सिस हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एक्सिस हमारे कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये होते हैं ना। चलो इसमें बात करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आई डॉट आई, बताओ कि क्या वैल्यू आएगी आई डॉट आई की, अभी हमारे वाले फॉर्मूले से। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई? 1। आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके, दीज आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है, 1। तो आई से मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इज 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 1 इंटू, भाई इनके बीच में एंगल कितना है, 0। आई कैप एंड, बेटा आई कैप और आई कैप कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए ना, ये तो एक जैसे ही है। बोथ आर गोइंग इन द आई कैप ना, तो cos 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। वैसे ही आई कैन राइट j डॉट जे, k डॉट के, क्या बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। फाइन, बिकॉज आई कैप एंड, अगर जे कैप और अपने ये करोगे, जे कैप करोगे तो भी वही आएगा, राइट। ओके, अब बताओ आई कैप डॉट जे कैप क्या आएगा, 0। जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, आई एंड जे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे, 90 डिग्री। 90। ठीक है, तो मैं
लिखूंगा कि 1 × 1 × cos 90 is 0, so everything will become 0, so 0 0. Fine. So okay, let's solve some questions. Vector A is 2i cap plus 3j cap. Vector B is I cap minus j cap. Find A dot B. तो देखो, how will we solve? So I will write 2i cap plus 3j cap. ये मैंने लिखा, बीच में क्या लगा दिया, डॉट, फिर लिखा i cap माइनस j cap. डिस्ट्रीब्यूट करना आता है? कैसे करेंगे? तो जो पहले वाली टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे लिखूंगा, 2i cap डॉट द होल ब्रैकेट i cap माइनस j cap, फिर प्लस 3j cap i cap माइनस j cap. अब इसको अंदर करते हैं तो क्या बनेगा, 2i cap डॉट i cap माइनस 2i cap डॉट j cap प्लस 3j cap डॉट i cap माइनस 3j cap डॉट j cap. अब बताओ 2i cap डॉट i cap क्या बन जाएगा? i डॉट i कितना होता है, देखो ना यहाँ पे 2 बन जाएगा. i डॉट i इज 1. तो ये जो i डॉट i है, अब बस इनको देखो, i डॉट i डॉट j, j डॉट i, j डॉट j. तो मतलब i डॉट i क्या बन जाएगा, 1. तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस i डॉट j क्या होता है, 0, बिकॉज i एंड j आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो 0. फिर यहाँ पे j डॉट i कितना होता है, 0. फिर यहाँ पे j डॉट j क्या होता है, 1. तो यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा, -1. तो आई विल से a डॉट b इज -1. इसके आगे i कैप मत लगा देना, i कैप j कैप कुछ नहीं, बिकॉज दिस इज स्केलर प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ सर वी. हाँ सर i इंटू से 0 कैसे हो? बेटा, i और j में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री सर. हाँ. तो यहाँ पे देखो ना, ये मैंने लिखा, जब i डॉट j करता हूं तो क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 90 ना. हाँ हाँ हाँ. तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज लिख सकते हो, इफ a and b are perpendicular that a dot b is 0. ये बहुत अच्छा वो है, प्रूफ है. if you want to prove two vectors to perpendicular, then their scalar product, or you can say a dot product, it has to be 0. Fine. यस सर. ओके, सो ये सबसे इजी चीज यही है. एडिशन के अंदर कोई फॉर्मूला भी याद नहीं रखना तुमको यहाँ पे. चलो और करते हैं. When vector is given in a 3D form, सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप. एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना. हाँ, ठीक है. okay, and you are given vector b is b1 i cap, b2 j cap, b3 k cap. Find a dot p. चलो अपने आप करो और मुझे बताओ क्या आएगा a डॉट p. भाई अभी तुमको कभी डिस्ट्रीब्यूशन करना तो बता ही दिया है, देन सॉल्व इट.
Sir, A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. यस। हाँ सर आया। बाकी लोग हाँ सर सेम हाँ आया। सर सेम आया। देखो, तो हम इसको अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है ना, तो हम कैसे लिखेंगे? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। मल्टीप्लाई कर डालो, क्योंकि हमको तो आता ही है डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ठीक है। तो A1 I कैप को सबसे किया, B1 I कैप प्लस A1 I कैप डॉट B2 J कैप प्लस A1 I कैप डॉट B3 K कैप। अब इसको मल्टीप्लाई किया A2 को, तो क्या आएगा? A2 J कैप डॉट B1 I कैप प्लस B A2 J कैप डॉट B2 J कैप प्लस A2 J कैप डॉट B3 K कैप प्लस क्या बच गया? A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस A3 K कैप डॉट B2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B3 K कैप। अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर कहीं पे I J और K होता है, वो तो क्या बन जाता है? 1, और जहां पे ऑपोजिट होते हैं वो बन जाता है 0। तो यहाँ देखो, यहाँ पे है IJ, यहाँ पे है IK, यहाँ पे है JI, यहाँ पे JK, यहाँ पर KI KJ, ये सब के सब क्या बन जाएंगे? 0, बिकॉज सारे वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर है ना, तो इन सबको कर दो 0। ये भी 0 0 0 0 0 0। अब जो बाकी बच गए वो देखते हैं। A1I B1 I डॉट आई क्या होता है? 1, तो सिंपली हमारे पास क्या बच जाएगा? A1 B1। फिर यहाँ पे आते हैं, J एंड J क्या बन जाएगा? 1, तो हमारे पास क्या बचेगा? A2 B2। वैसे ही यहाँ पे बच जाएगा A3 B3। तो हमको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे? आई वाले नंबर को आई वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले नंबर को जे वाले नंबर से, के वाले नंबर को के वाले नंबर से। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन में करना चाहूं, देखो इसमें आई वाला नंबर क्या है? 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2। ये जो नंबर है जे वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जे से, क्या आया? -3। तो आंसर कितना आ गया? -1। हमको इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, बट हमको आना चाहिए। वी शुड नो दैट हाउ did we arrive at this point। ठीक है, तो जैसे अब तुमको वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है 3I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। फाइंड A डॉट B। ओके, बताओ क्या आएगा? -1। ओके ठीक है, तो जब भी हम करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? I, यहाँ पे क्या है? I, यहाँ पे I के साथ में कौन सा नंबर है? 3, वहां पे कितना है? 1, तो 3 × 1 प्लस यहाँ पे कितना है? -1 और यहाँ कितना है? 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है? 1, वहां कितना है? -1। तो क्या आएगा? 3 - 2 -1 कितना बन गया? 0। तुम्हारा कैसे आया कुछ और? हाँ, किसने आंसर बोला था? और मैंने बोला था। हाँ बताओ, तुमने कहाँ गलती किया? सर मैंने -J कैप एंड 2J कैप है ना, तो मैं माइनस साइन लगा दिया। हाँ तो देखो, है ना,
तो ये 0 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो क्या बोलोगे? 90. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। क्यों? जब when स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, तो इसका मतलब क्या होता है? उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हमारे पास में 0 आ गया ना ये। तो वी कैन से दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। फाइन। हाँ भाई, आगे बढ़े। यस सर। किसी को कुछ अभी तक डाउट है तो बताओ। एनी डाउट टिल नाउ? एनीवन? अब तो सब लोग आ गए ना, 46 हो गए। ओके, चलो। तो ये देखो, ये हमने सीख लिया कि हाउ डू वी फाइंड दिस। अब देखो, सीखने का मतलब क्या है? मतलब हमको एप्लीकेशन चाहिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि व्हाट कैन आई नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड एंगल बिटवीन vectors. Okay, so if there are two vectors are given, suppose एक हमको दिया हुआ है वेक्टर a, एक हमको दिया हुआ है वेक्टर b, then how do we find the angle between two vectors? So I will write a dot b क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा होता है। दृश्या, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay, so now if I want to calculate cos theta, so what will it become? A vector dot b vector upon magnitude of a magnitude of b. तो हमारे पास cos theta की वैल्यू आ जाएगी। If I know the value of cos theta, then I know the angle, right? Okay, अब मुझे बताओ, क्या मैं इस पर सर सकता हूँ? देखो, a डॉट a अपॉन a डॉट b डॉट अपॉन b, तो ये क्या बन गया? कोई भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर। तो ये बन जाएगा ए कैप डॉट, ये क्या बन जाएगा? बी कैप। तो इट्स योर चॉइस, तुमको इसको यूज में लेना है इसको ले लो, इसको यूज में लेना है इसको ले लो। देयर इज नो यू कैन से डिफरेंस, ऑल आर सेम। जैसे एग्जांपल करते हैं, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स गिवन, one is a vector is 2i cap plus j cap plus k cap, ठीक है। b vector is 6 हो गया ना, तो i cap minus j cap minus k cap। okay, fine, angle between a vector and b vector. So whenever such question arrives, what you have to do is solve. First you will write down the step. You will say a dot b equal to magnitude of a magnitude of b into cos theta. Now you will write cos theta equal to
A dot B upon A P. So first you calculate A dot B. बताओ क्या आएगा A dot B? कैसे करते हैं? I को I के साथ तो 2 1 2, इधर कितना है J पे -1, यहाँ पे 1 तो -1, यहाँ पे कितना आएगा -1, तो क्या बन गया 0। यार ये तो अभी 0 बन गया, तो सब कुछ 0 बन गया ना, तो तुमने लिखा cos थीटा 0, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, so you will say 90 डिग्री। ठीक है, सपोज 0 नहीं आता, कुछ और आता, देखते हैं। सपोज वेक्टर P इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, वेक्टर Q इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस 3K कैप। फाइंड एंगल। एक सेकंड ऊपर। हाँ चलो, मतलब इसका एंगल फाइंड आउट करो। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60, चलो देखते हैं। देखो, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई अपना जल्दबाजी नहीं, आराम से। तो हम लिखेंगे कि वेक्टर P डॉट Q क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q इनटू cos थीटा। तो cos थीटा बन जाएगा P वेक्टर Q अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P। अब इन सब चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले कैलकुलेट करते हैं P डॉट Q। तो व्हेन वेक्टर्स आर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म, हाउ डू आई मल्टीप्लाई I को I से, J को J से, K को K से, तो क्या आएगा 2 + 1 + 3 कितना बन गया 6। तो I डॉट J, अब मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ P। बताओ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √1² + 1² + 1², तो कितना आ गया √3। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q कैसे आता है, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा 10 9 14 √12। 12 नहीं ना बेटा, 14 स्क्वायर करना है ना 2 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6 अपॉन √3 √14 cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा क्या बन गया, कहते सिंपलीफाई तो हो ही नहीं रहा ये, तो √42, बस। तो हम छोड़ देंगे कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 6 अपॉन √42।
किस किसका आया? सर मेरा आया। गुड। तो हमको जो भी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को यहाँ पे लिख लो और उसको कैलकुलेट कर लो, फिर हमको क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मूला तो सिंपल सा ही है, छोटू सा। ठीक है? हाँ भाई, एवरीवन, किसी को कुछ डाउट हो तो आप बोल देना भाई। हाँ चलो देखो आगे आते हैं। इसके अंदर मतलब कि और क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो ऐसे आएंगे। सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है ए, दिस इज ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर दिया होगा वेक्टर बी, दैट इज ए आई कैप माइनस ए जे कैप प्लस 6 के कैप। फाइंड values of A for which A vector is a perpendicular to B vector। हमें फाइंड करना है कि A जो है, A जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये A यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, इस A की वैल्यू क्या हो such that the angle between vector A and vector B is 90 degree। So tell me, what is the condition for vector to be perpendicular? If the angle between the vectors is 90 degree, then cos 0। तो हाँ नहीं, तो हम लिखते हैं कि a डॉट b क्या हो जाना चाहिए, 0 फॉर a वेक्टर। ये होता है ना, अगर cos की वैल्यू, cos अगर 90 डिग्री है थीटा की, तो cos 90 कितना बन जाएगा, 0। सो नाउ आई विल सॉल्व। ओके टेल मी, a डॉट b कैसे बनेगा, इस को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है -1, तो क्या बन जाएगा माइनस ए। यहाँ पे कितना है 1, वहां पे कितना है 6, तो -6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, क्या होगा, a -3 a + 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास में आ जाएगा a इक्वल टू 3 एंड a इक्वल टू 2। इफ द वैल्यू ऑफ a either 3 or 2, then my vectors are perpendicular। सर a equals to 3 और -2 ना? हाँ -2, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा गया, हाँ -2। तो इसके अंदर इसी टाइप के आते हैं, वैरायटी जो होती है ना क्वेश्चंस के, वो आती है। कर लोगे ना भाई, मल्टीप्लिकेशन इज कंपैरेटिवली इजी देन योर व्हाट एडिशन। जैसे चलो एक और बताओ, एक चीज और करो। सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है a, दैट इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। तो इसके अंदर पार्ट 1, एंगल विद x एक्सिस इज अल्फा। भाई हमको पता है कि कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। सपोज ये हमारे पास में एक वेक्टर है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद x एक्सिस, ठीक है। फाइंड cos अल्फा क्या होगा, बताओ। एक वेक्टर दिया हुआ है जो x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा, देन cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, x एक्सिस क्या होता है, हाँ भाई
What is x-axis in vector form? I cap. I cap, yes. So we have to find angle between I cap and the given vector. अब ये आंसर क्या आया? सर आप इसका आंसर बता दो ना। तुम बताओ ना तुम्हारा क्या आया? हाँ, क्या आंसर आया? सर मेरे को समझा नहीं सर। अरे सर थोड़ा तुमको एक अजीब आंसर आया। क्या आया? सर 1/a² 1 नहीं 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 प्लस नहीं 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 नहीं।
यार देखो तो तुमको cos अगर इनवर्स नहीं 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 सुनो तो, सपोज तुम्हारे पास जो पहला वेक्टर है वो क्या बन गया है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, राइट। और जो तुम्हारा सेकंड वेक्टर क्या बन गया है, i कैप बन गया ना, मतलब एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, i कैप। अब बताओ अगर इन दोनों के बीच में एंगल तुम्हारे पास में अल्फा है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, cos अल्फा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। और क्या बताओ मतलब a डॉट b क्या आएगा यहाँ से, हाँ भाई इसके पास में आई कैप 1 है, इसके पास आई कैप कितना a1, तो ऊपर कितना बन गया a1, A1 इसके पास तो है ही नहीं j, तो इसका मतलब क्या होता है 0j 0k तो 0, ओके फिनिश। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है बताओ, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आएगा, कोई भी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है तो क्या होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये होता है ना मैग्नीट्यूड। तो बस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि वो तो अपना यूनिट वेक्टर है, तो ये आ गया cos अल्फा। किस किस का आया, किसी का नहीं आया। सपोज इसी के अंदर एंगल विद y एक्सिस इज बीटा, देन cos बीटा, बताओ क्या आएगा। एंगल निकालना है y एक्सिस के साथ में, तो अब हमारा दूसरा वेक्टर क्या बन जाएगा, b वेक्टर। सर a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस तो a2 इसके इसके अंदर क्या करोगे, वेक्टर a इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और जो हमारा वेक्टर है b वो क्या बन जाएगा j कैप, बिकॉज नाउ वी आर फाइंडिंग द एंगल विद y एक्सिस। सो cos बीटा क्या बन जाएगा बताओ, a डॉट b अपॉन ए बी, बताओ a डॉट b क्या आएगा a2 a2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा नीचे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। हाँ भाई एवरीवन, Yes, sir. ओके सेम चीज, एंगल विद z एक्सिस इज गामा, देन cos गामा क्या बन जाएगा बताओ, बताओ। A3 upon सिमेट्री से अब तो लिख सकते हैं ना, अब तो a3 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, राइट। तो अब यहां से फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में है ना cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और एक देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके देखो क्या आता है, यहाँ पे आएगा a1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a3 स्क्वायर, और हमारा डिनोमिनेटर में भी क्या बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो अगर इसको अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं मैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सपोज ये हमारे पास में प्लेन है एक, सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। हाँ एक बार मैं तुमको अगर डायग्राम दिखा दूं, ओके ये सपोज हमारे पास में ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास में जेड एक्सिस, और ये कोई हमारे पास वेक्टर है, ये है वेक्टर ए। तो इसका एंगल मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ में बन रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में बन रहा है गामा। तो हम लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
ठीक है, और ये चीज सबके लिए वैलिड है, चाहे तुम्हारा वेक्टर जो है ना 3D में दिया हो या फिर अपने 2D में दिया हो, सब में वैलिड है। ठीक है, हाँ। सर ये डायरेक्शन कोसाइंस का यूज क्या होता है? बस मतलब एंगल बताने के लिए कि ये जो हमारा वेक्टर है इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है। भाई जैसे तुम 2D में भी तो स्पेसिफाई करते हो ना, ये भाई तुम ऐसे देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड है a और ये एंगल थीटा है, तो ये जो वेक्टर है इसको ऐसे लिखते हो ना, a एंड अपना थीटा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि अगर इसका एंगल मतलब एक्स एक्सिस के साथ में थीटा है तो इसके साथ में कितना है, वाई के साथ में 90 माइनस थीटा। हाँ। इफ इन 2D, लेकिन अगर मैं 3D में आ जाऊंगा तो 3D में आऊंगा तो एंगल मेरे पास में अलग अलग आते हैं ना, इसलिए तो ये हमारे पास में अल्फा बन गया, ये हमारे पास में बीटा और ये हमारे पास में गामा। ओके। ठीक है, तो देखो अगर एक क्विक रिवीजन टाइप का अगर करें कि आज हमने क्या किया है, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर जो होता है प्रोडक्ट वो हम कब करते हैं, व्हेन द आउटपुट ऑफ टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इज ए स्केलर। ठीक है, हमने उसको ऐसे किया डिफाइन कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट, उसके अलोंग वाला कंपोनेंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इस पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारा जो क्या बोलोगे, एंगल जो है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, जब तुम्हारा एंगल एक्यूट होता है तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, ऑब्ट्यूस होता है तो नेगेटिव आती है, राइट एंगल होता है तो जीरो आती है। फिर हमने ये देखा था कि अगर वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में दिया हो तो कैसे होता है। तो हमने देखा कि इफ वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है, तो उनका जो है प्रोडक्ट आता है वो अपने हो जाता है 1। ठीक है, और अगर आई कैप के साथ में जे कैप या के कैप है तो हमारे पास बन जाता है 0। फिर हमने एक दो क्वेश्चन किए, फिर हमने इसको निकाल दिया 3D वाला। जब हमको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं और हमको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वी डोंट हैव टू वरी, वी हैव टू जस्ट आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे कैप को जे कैप के साथ में, के कैप को के कैप के साथ में। फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है कि भाई अगर हमने सीख लिया है कि ए डॉट बी क्या होता है तो उससे क्या करें। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन आता है वो यही आता है कि हम वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट किया। फिर हमने एक और चीज फाइंड आउट की जिसको हमने बोला डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, फिर ये किया। तो और अभी के लिए इतना ही करो। लेक्चर जो 5 है ना, नहीं 5 जिसके अंदर ये स्केलर प्रोडक्ट है उसको स्टार्ट कर सकते हो तो। ठीक है, और हाँ इसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा ये वाले नोट्स सारे। ठीक है, कुछ पूछना है? लेक्चर Anyone? का क्या करना है सर? उसके क्वेश्चंस ना जो पीछे होते हैं ना, ट्यूटोरियल और इन क्लास एग्जांपल होते हैं,
अच्छा ठीक। तो उसको अटेम्प्ट करो, जितने क्वेश्चन होते हैं अच्छी बात है, नहीं होंगे तो देन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। पहले इनको भी रिवाइज करना, क्वेश्चन को कहते ट्राई करो, जितने क्वेश्चन तुमसे हो पाए अपने आप से उतना अच्छा है। कौन सा लेक्चर सर? हाँ कौन सा लेक्चर? अरे यार वेक्टर्स में जहाँ पे अपना खत्म हो गया था ना, कितने लेक्चर कर लिए थे हमने? 4, ठीक है। तो उसके आगे उसमें लिखा होगा कि इस लेक्चर में क्या क्या कंटेंट है ना, उसमें लिखा होगा स्केलर प्रोडक्ट। तो लेक्चर उसका हाँ तो लेक्चर 5 जो है ना, उसका इन क्लास एग्जाम्पल और ये क्या